This is me Punesh Kumar Tembre, and in today's class of artificial intelligence, we have to go for the topic resolution example 3. So here we have to study one more example to understand the concept of resolution. So here we have example 3. Consider the situation in a block word problem as follows. So here block word problem is given to you. So one table is given to us, and over that table we have block A, and then we have block B. So such kind of situation is given to us, and then using resolution we have to prove that block B is on the table. So as far as this particular problem is concerned, no English facts are given to us. Directly one graphical scenario is given to us, and then it is asked using resolution we have to prove block B is on the table. So whenever we have to solve such kind of problem, at that time we have to represent the given situation by facts or rules. So what are the facts which we can write over here? The first fact is that B is on A. तो जैसे आप देख सकते हैं ब्लॉक बी जो है इस ब्लॉक बी को हमने ब्लॉक ए के ऊपर रखा हुआ है तो दैट्स वाई फर्स्ट फैक्ट हम लिख सकते हैं बी इज ऑन ए. देन सेकंड फैक्ट वी हैव ए इज ऑन टेबल and we have to add some additional facts due to the granularity of representation और additional facts जो रहेंगे वो इस तरह के रहेंगे. Being an object implies being above that object, and we have to add one more fact: each object is above another if there is object in between. So in this way we have total 4 facts, and with respect to these 4 facts now we have to apply the resolution. जब कभी भी resolution हम apply करेंगे तो we have to apply 4 steps. So step 1 will be conversion of facts into first order logic. In step 2 we have to convert the first order logic statements which we got in step 1 into the conjunctive normal form. That will be the step 2. In step 3 we have to negate the statement which needs to prove, and in step number 4 we have to apply the resolution by using unification and substitution. So whenever we will apply all these 4 steps, then automatically our resolution will be performed. So whenever we have to apply the resolution, here we have to go for the solution. So here we have very first step, and step 1 is regarding conversion of facts into the FOL. The first fact is B is on A. तो B is on A इस पर्टिकुलर फैक्ट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो B is on A यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कोई प्रेडिकेट जो बनेगा दैट इज व्हाट ऑन नाम का प्रेडिकेट हमारे पास है, एंड दिस ऑन प्रेडिकेट ये एग्जिस्ट इन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स. एक रहेगा बी और दूसरा रहेगा ये, यानी किसी चीज के ऊपर किसी दूसरी चीज को रखा हुआ है, एंड दैट्स वाई इस पर्टिकुलर फैक्ट को रिप्रेजेंट करते वक्त प्रेडिकेट कैलकुलस या फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका रिप्रेजेंटेशन रहेगा ऑन बी ए. सेकंड फैक्ट ये इज ऑन टेबल, तो वंस अगेन सेम प्रेडिकेट को हम यूज करेंगे दैट इज ऑन, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हम यूज करेंगे दैट विल बी ए एंड टेबल, एंड देयरफॉर ऑन ए टेबल. तो ध्यान दीजिएगा जब कभी भी हम ऑन यूज कर रहे हैं तो ऑन ए टेबल इसका मतलब ये है कि ए इज ऑन द टेबल. तो फर्स्ट वाली जो चीज है ये ऊपर रहने वाली चीज है, जबकि सेकंड वाली जो एंटिटी है वो नीचे रहने वाली चीज है, एंड देयरफॉर ये ऑन टेबल इस तरह का फैक्ट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले ऑन लिखने के बाद फर्स्ट हमें ये लिखना है और उसके बाद हमें टेबल लिखना है. देन वी हैव थर्ड फैक्ट बीइंग एन ऑब्जेक्ट इंप्लाइज बीइंग अबव दैट ऑब्जेक्ट. इस पर्टिकुलर फैक्ट को इंडिकेट करते हुए कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे इम्प्लीकेशन यूज करना पड़ेगा और क्वांटिफायर भी यूज करना पड़ेगा. इसका रिप्रेजेंटेशन रहेगा फॉर ऑल एक्स एंड ऑल वाई if x is on y implies that x is above y. क्यों? क्योंकि हमारे फैक्ट का मतलब भी ऐसा है being an object implies being above that object, and that's why इसका रिप्रेजेंटेशन जो होगा that will be for all x and for all y on xy implies that above xy. Then next fact, each object is above another if there is object in between, and that's why for all x, for all y, for all z above xy and above yz, then it implies that above xz. तो इस पर्टिकुलर फैक्ट को केयरफुली समझिए. each object is above another if there is object in between, and that's why above xy यानी x is above y and y is above z. अगर ऐसा है इसका मतलब होगा
कि यक्स इज अबो जेड। तो इन दिस वे जितने भी फैक्ट्स हमारे पास दिए हुए थे, ये सारे के सारे फैक्ट्स और ग्रैनुलरिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन की वजह से जो हमने एडिशनल फैक्ट्स यूज किए थे, वो सारे फैक्ट्स को हमने स्टेप नंबर 1 में फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में रिप्रेजेंट किया है। तो दिस वाज अबाउट द स्टेप 1 वेयर वी हैव कन्वर्टेड ऑल द फैक्ट्स इनटू द फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। देन वी हैव सेकंड स्टेप। So in step 2 of resolution, we have to convert all the first order logic statement into the CNF. And in order to परफॉर्म दिस पर्टिकुलर स्टेप नंबर 2, हमें टोटल 6 सब स्टेप्स यहाँ पे परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो हमारे 6 सब स्टेप्स है: इलिमिनेशन ऑफ ऑल इम्प्लीकेशन एंड राइट, सेकंड वन इज मूव निगेशन इनवर्ट्स एंड राइट, थर्ड वन इज रीनेम द वेरिएबल और स्टैंडर्डाइज द वेरिएबल, फोर्थ one is eliminate existential quantifier, fifth one is drop universal quantifier, and last sub step is distribute conjunction over disjunction. So in step number 2 we have to apply all these 6 sub steps. So we have to apply all the sub steps one by one. So very first we have sub step 1, that is elimination of all implications. तो जब हमें implications eliminate करना है, तब अगर हमारे पास कोई फैक्ट अगर इस तरह का है, ये implies b, तो ये इम्प्लाइज बी में का इम्प्लीकेशन हटाते वक्त ये इम्प्लाइज बी को हम लिखने वाले हैं नॉट ये और बी। तो हियर आवर कन्वर्जन रूल इज ये इम्प्लाइज बी इज इक्विवेलेंट टू नॉट ये और बी। तो वी हैव टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर रूल टू ऑल द फैक्ट्स वन बाय वन। फर्स्ट फैक्ट है ऑन बी ए, यहाँ पे हमारे पास इम्प्लीकेशन नहीं है तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे। सेकंड फैक्ट है ऑन ए टेबल, फिर से इस पर्टिकुलर फैक्ट में इम्प्लीकेशन नहीं है, हम एज इट इज लिखेंगे। थर्ड फैक्ट फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई ऑन एक्स वाई इम्प्लाइज दैट अबव एक्स वाई। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको इम्प्लीकेशन दिख रहा होगा। तो वी हैव टू अप्लाई दिस रूल, ये इम्प्लाइज बी इज इक्विवेलेंट टू नॉट ए और बी। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले हम नॉट लगाएंगे, तो रिप्रेजेंटेशन बनेगा फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई नॉट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज नॉट ऑन एक्स वाई, और वी हैव टू राइट राइट हैंड साइड दैट इज अबव एक्स वाई। Then next fact, for all x, for all y, for all z, above xy and above yz implies that above xz। इस पर्टिकुलर फैक्ट को लिखते वक्त फिर से यहाँ पे हमारे पास इम्प्लीकेशन है, एंड दैट्स वाई इम्प्लीकेशन हटाने के लिए हमें रूल लगाना पड़ेगा ये इम्प्लाइज बी इज इक्विवेलेंट टू नॉट ए और बी। एंड देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड को नॉट लगाएंगे और राइट हैंड साइड को और के साथ लिखेंगे, तो कन्वर्जन कुछ इस तरीके से बनेगा for all x for all y for all z not to left hand side, that is not of above xy and above yz, and r of right hand side, that is r above xz. So this was about the step number 2 sub step 1 where we have eliminated all the implication, and now we have to go to sub step 2. The sub step 2 is about move negation inverts and rewrite. तो हियर फर्स्ट फैक्ट इज ऑन बी ए, यहाँ पे निगेशन को इन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सेकंड फैक्ट में भी निगेशन को इन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। थर्ड फैक्ट में भी निगेशन को इन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिंगल टाइम ही हमारे पास निगेशन आ रहा है। एंड वेन एवर वी आर गोइंग फॉर द फोर्थ फैक्ट, तो हियर वी हैव टू कैरी फॉरवर्ड द निगेशन। तो निगेशन जब हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो निगेशन कैरी फॉरवर्ड करते वक्त यहाँ पे हम डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे, और डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करते वक्त नॉट को कैरी फॉरवर्ड करेंगे और बीच में कहीं भी एंड अगर आ रहा है तो उसको हम और लिखेंगे। तो इसका रिप्रेजेंटेशन रहेगा नॉट अबोव एक्स वाई, और नॉट एंड जो था तो एंड को हमने और लिख दिया, तो और नॉट अबोव वाई जेड, एंड देन वी हैव टू राइट हैंड साइड नेक्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज। तो देयरफॉर हमारा कंप्लीट स्टेटमेंट जो बनेगा दैट विल बी for all x for all y for all z not above xy और not above yz और above yz। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमने इस निगेशन को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया, और कैरी फॉरवर्ड करते वक्त दोनों अबव के साथ में निगेशन अप्लाई कर दिया, और बीच में जो एंड आया था उस एंड को हमने और लिखा। तो दिस वाज अबाउट दिस सब स्टेप 2, एंड नाउ वी हैव टू गो टू सब स्टेप 3। तो इन सब स्टेप 3 वी हैव टू गो फॉर द रीनेमिंग ऑफ वेरिएबल और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो जब कभी भी हमारे वेरिएबल्स अगर रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीटेशन के वक्त एम्बिग्यूटी हटाने के लिए हम स्पेशल वेरिएबल्स को यहाँ पे यूज करते हैं। तो फर्स्ट फैक्ट में हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है, एज इट इज लिखेंगे। सेकंड फैक्ट जो है ऑन ये टेबल, यहाँ पर भी हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है, एज इट इज लिखेंगे। थर्ड फैक्ट जो है यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है, फॉर ऑल एक्स एंड फॉर ऑल वाई, एंड देयरफॉर इनके लिए हमें स्पेसिफिक वेरिएबल्स हमें यूज करने पड़ेंगे, और स्टैंडर्डाइजेशन करते हो हर एक्स को हम x1 से रिप्लेस करेंगे और y को हम y1 से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा फैक्ट बनेगा फॉर ऑल x1 फॉर ऑल y1 नॉट ऑन x1 y1 और अबव x1 y1।
सिंपली हमने x को रिप्लेस किया x1 के साथ और y को रिप्लेस किया y1 के साथ. देन वी हैव लास्ट फैक्ट, फॉर ऑल x फॉर ऑल y फॉर ऑल z. तो यहाँ पे हमारे पास तीन तीन वेरिएबल्स है और ये तीनों वेरिएबल्स को फिर से हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा. तो x की जगह भी हम x1 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि x को हमने ऑलरेडी x1 से रिप्लेस किया है. तो अभी फोर्थ वाले फैक्ट में जहां जहां x आया है वहां हम x2 लिखेंगे, जहां जहां y आया है वहां हम y2 लिखेंगे, और जहां z आया वहां पे भी हम z1 लिखेंगे. तो देयर फॉर दिस पर्टिकुलर फैक्ट विल बिकम, फॉर ऑल x2 फॉर ऑल y2 फॉर ऑल z1 not above x2 y2 or not above y2 z1 or above x2 z1. So this is about the renaming or a standardization of variable. And then we have to go to sub step 4. Here we have sub step 4 where we have to go for elimination of existential quantifier. तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर जब हम हटाते हैं तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर हटाने वाली स्टेप को जनरली हम स्कोलेमाइजेशन कहते हैं. बट एज फार एज दिस करंट प्रॉब्लम इज कंसर्न, हमारे किसी भी फैक्ट में एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर नहीं है, एंड दैट्स व्हाई नो नीड टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर स्टेप. तो देयरफॉर आवर आउटपुट विल बी एज इट इज, और हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से रहेगा जैसे हमारे फैक्ट्स थे इससे पहले, सेम फैक्ट्स को हमने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया है. देन वी हैव टू गो टू नेक्स्ट सब स्टेप. नेक्स्ट स्टेप इज अबाउट वी हैव टू इलिमिनेट और ड्रॉप द यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स. तो जितने भी यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स हमारे पास है हमको सिंपली सभी को हमें ड्रॉप करना है. फर्स्ट फैक्ट, ऑन बी है कोई यूनिवर्सल क्वांटिफायर नहीं है, एज इट इज लिखो. सेकंड फैक्ट, ऑन ए टेबल कोई यूनिवर्सल क्वांटिफायर नहीं है, एज इट इज लिखो. थर्ड फैक्ट, फॉर ऑल एक्स वन फॉर ऑल वाई वन, हमारे पास दो दो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, सिंपली इनको हम ड्रॉप कर देंगे और रिमेनिंग फैक्ट को एज इट इज लिखेंगे. तो रिमेनिंग फैक्ट बन जाएगा नॉट ऑन x1 y1 और अबो x1 y1. नेक्स्ट फैक्ट इज फॉर ऑल x2 फॉर ऑल y2 फॉर ऑल z1. यहाँ पे हमारे पास फोर्थ फैक्ट में तीन तीन यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, सिंपली उनको हमें इलिमिनेट करना और बाकी रिमेनिंग फैक्ट को एज इट इज लिखना है. तो देयरफॉर फैक्ट बन जाएगा नॉट अबव x2 y2 और नॉट अबव y2 z1 और अबव x2 z1. तो दिस वाज अबाउट द सब स्टेप नंबर 5. एंड नाउ वी हैव टू गो टू लास्ट सब स्टेप where we have to go for distribution of conjunction or disjunction. तो इस पर्टिकुलर स्टेप को अप्लाई करने के बाद करंट प्रॉब्लम के लिए हमारा आउटपुट चेंज नहीं होगा, एंड देयरफॉर हमारा आउटपुट जो है वो एज इट इज रहेगा. दैट इज ऑन बी ए को हम ऑन बी ए लिखेंगे, ऑन ये टेबल को ऑन ये टेबल ही लिखेंगे. थर्ड फैक्ट रहेगा नॉट ऑन x1 y1 और अबो x1 y1. और फोर्थ फैक्ट जो रहेगा नॉट अबो x2 y2 और नॉट अबो y2 z1 और अबो x2 z1, वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा. तो ओवरऑल अगर हम स्टेप नंबर 2 को अगर देखते हैं तो स्टेप नंबर 2 के लिए इनपुट जो रहेगा दैट विल बी द स्टेटमेंट्स इन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, जो कि हमें स्टेप नंबर 1 का आउटपुट मिलेगा. तो हमारा इनपुट टू स्टेप नंबर 2 कुछ इस तरीके से था. और इस पे अगर हम स्टेप नंबर 2 यानी टोटल 6 सब स्टेप्स अगर हम लगाते हैं तो 6 सब स्टेप्स लगाने के बाद फाइनल आउटपुट जो मिलेगा दैट विल बी लाइक दिस. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में आउटपुट ऑफ स्टेप नंबर 2. और अभी आउटपुट ऑफ स्टेप नंबर 2 जो है वो कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में है. क्यों? क्योंकि ऑल द फैक्ट्स आर फ्री फ्रॉम यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एंड नो इम्प्लीकेशन इज देयर. गेटिंग इट? तो स्टेप नंबर 2 जो था हमारा कन्वर्जन ऑफ FOL टू CNF, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है. And now we have to go to step number 3. So here we have step number 3. In step number 3 we have to negate the statement which we want to prove. तो जनरली इस पर्टिकुलर स्टेप में जो स्टेटमेंट हमें प्रूव करना होता है उसका निगेशन हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं. तो हमें प्रूव करना जो है वो था अबोव बी टेबल, क्योंकि बी इज अबोव टेबल. इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हमें यहाँ पे प्रूव करना था, एंड दैट्स वाई उसका निगेशन हमें अज्यूम करना पड़ेगा. तो निगेशन क्या होगा? नॉट अबोव बी टेबल. एंड देयरफॉर इस पर्टिकुलर फैक्ट को हमें हमारे नॉलेज बेस में ऐड करना पड़ेगा. तो हमारा फाइनल नॉलेज बेस कुछ इस तरीके से बनेगा. पुराने वाले हमारे पास 4 फैक्ट्स हैं जो कि हमें स्टेप नंबर 2 से मिले थे, और फिफ्थ वाला फैक्ट हमने स्टेप नंबर 3 में ऐड किया है. तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 5 फैक्ट्स है. एंड नाउ विथ रिस्पेक्ट टू दिस 5 फैक्ट्स एज द इनपुट, नाउ वी हैव टू गो टू स्टेप नंबर 4. एंड और स्टेप नंबर 4 इज अबाउट टू परफॉर्म द रिजोल्यूशन. रिजोल्यूशन परफॉर्म करते वक्त हम सब्सटीट्यूशन एंड यूनिफिकेशन परफॉर्म करेंगे, और सब्सटीट्यूशन एंड यूनिफिकेशन परफॉर्म करते वक्त हम स्टार्ट करेंगे नॉट अबोव बी टेबल के साथ, जो कि हमें प्रूव करना है. तो हमें प्रूव करना है एक्चुअली अबोव बी टेबल, बट उसका निगेशन हम अज्यूम करते हैं, एंड दैट्स व्हाई हियर वी हैव नॉट अबोव बी टेबल. जबकि हमारा नॉलेज बेस चेक करेंगे तो हमारे नॉलेज बेस में कुछ इस तरीके से है. तो करंट स्टेटमेंट
और नॉलेज बेस, ये दोनों के ऊपर अभी हमें यहाँ पे रिजोल्यूशन परफॉर्म करना है यूजिंग यूनिफिकेशन। और जब रिजोल्यूशन हम परफॉर्म करेंगे, रिजोल्यूशन परफॉर्म करते हो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा नॉट अबोव का रिवर्स जो होगा वो हमारे डेटाबेस में अवेलेबल है क्या। अब नॉट अबोव का रिवर्स या फिर निगेशन वाला प्रेडिकेट क्या होगा, अबोव। एंड दैट्स व्हाई हियर वी हैव टू चेक फॉर द फैक्ट विच कंटेन अबोव। तो अबोव वाला फैक्ट फर्स्ट तो नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड वाला है क्या, यस। तो थर्ड फैक्ट में कहीं ना कहीं अबोव है और फोर्थ फैक्ट में कहीं ना कहीं अबोव है। तो हम थर्ड या फोर्थ ये दोनों में से किसी फैक्ट को यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जिस पर्टिकुलर फैक्ट को यूज किया है दैट इज व्हाट फैक्ट नंबर 4। तो हियर फैक्ट नंबर 4 जो है वो है नॉट अबोव x2 y2 और नॉट अबोव y2 z1 और अबोव x2 z1। इस तरीके से हमने इस फोर्थ वाले फैक्ट को यूज किया है। एंड नाउ देयर विल बी द रिजोल्यूशन इन बिटवीन दिस टू स्टेटमेंट्स। अब ये दोनों स्टेटमेंट के बीच में रिजोल्यूशन जब होगा तो नॉट अबोव बी टेबल एंड अबोव x2 z1 ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। यहाँ पे दो बार यूनिफिकेशन परफॉर्म होगा एंड दैट यूनिफिकेशन विल बी इन बिटवीन b एंड x2 एज वेल एज टेबल एंड z1। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा यूनिफिकेशन जो परफॉर्म हो रहा है दैट इज इन बिटवीन x2 एंड b एंड z1 एंड टेबल। एंड देयरफॉर आउटपुट ऑफ रिजोल्यूशन आफ्टर इटरेशन 1 जो मिलेगा दैट विल बी लाइक नॉट अबोव x2 y2 और नॉट अबोव y2 z1। तो जहां जहां x2 है x2 को b से रिप्लेस करना पड़ेगा, जबकि जहां जहां z1 है टेबल से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आउटपुट आफ्टर इटरेशन 1 जो बनेगा दैट विल बी नॉट अबोव by2 और नॉट अबोव y2 टेबल। तो नाउ दिस इज व्हाट द आउटपुट विच वी गॉट आफ्टर इटरेशन 1। और इस पर्टिकुलर इनपुट के साथ अभी हमें स्टेप नंबर 2 के लिए जाना पड़ेगा। तो जब कभी भी हम रिजोल्यूशन का स्टेप नंबर 2 अप्लाई करेंगे तो फिर से चेक करेंगे यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल प्रेडिकेट्स कौन से फिर से नॉट अबो नॉट अबो। तो हमें ऐसा फैक्ट देखना पड़ेगा जिसमें अबो वाला फैक्ट अवेलेबल हो। तो अबो वाला फैक्ट अवेलेबल है, ऐसे फैक्ट कौन से है, तो फिर से 3 और 4 ये दोनों फैक्ट हमारे पास अवेलेबल है। तो ये दोनों में से किसी को यूज कर सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया है फैक्ट नंबर 3 को। तो फैक्ट नंबर 3 जब हम यूज करेंगे तो फैक्ट नंबर 3 में नॉट negation of that is not on x1 y1 और above x1 y1 इस तरह का फैक्ट हमने लिया है। तो यहाँ पे ये एक above और यहाँ का एक above मीन्स नॉट above एंड above विल गेट कैंसल्ड। और जब हम ये कैंसलेशन परफॉर्म करेंगे तो इस तरह का रिजोल्यूशन यहाँ पे होगा स्टेप नंबर 2 में। और हम यूनिफिकेशन जो परफॉर्म कर रहे हैं वो है बी एक्स वन और वाई टू वाई वन के बीच में। बी एक्स वन एंड वाई टू वाई वन के बीच में यहाँ पे हमें रिजोल्यूशन परफॉर्म करना पड़ेगा। और ये रिजोल्यूशन परफॉर्म करने के बाद में हमारा आउटपुट जो आएगा दैट आउटपुट विल लुक लाइक दिस, दैट इज नॉट अबोव वाई टू टेबल और नॉट ऑन बी वाई टू। तो आप केयरफुली परफॉर्म कीजिएगा इस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन को। तो नॉट अबोव वाई टू टेबल इस तरह का मीन्स फर्स्ट वाला ये जो नॉट अबोव है इस नॉट अबोव को हमने यहाँ से इसके साथ कैंसिल किया हुआ है। मीन्स फर्स्ट वाले आउटपुट आफ्टर इटरेशन वन में का जो फर्स्ट वाला नॉट अबोव है, पॉइंटर पे ध्यान दीजिएगा, दिस पर्टिकुलर नॉट अबोव विल गेट कैंसल्ड विद दिस पर्टिकुलर अबोव एंड देयरफॉर रिजोल्यूशन जो होगा दैट विल बी इन बिटवीन दिस बी एंड x1 एंड y2 एंड y1, गेटिंग इट। और इस तरीके से आपका आउटपुट जो रहेगा दैट आउटपुट विल कंटेन नॉट अबोव y2 टेबल और नॉट ऑन x1 y1। तो जो भी आउटपुट रहेगा उस आउटपुट में b को हमें x1 से रिप्लेस करना पड़ेगा, x1 को हमें b से रिप्लेस करना पड़ेगा और y1 को हमें y2 से रिप्लेस करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आफ्टर परफॉर्मिंग द इटरेशन 2 इन रिजोल्यूशन वी विल गेट दिस आउटपुट। एंड नाउ वी हैव टू गो टू इटरेशन 3। तो जब हम इटरेशन 3 के लिए जा रहे हैं तो इटरेशन 3 में फिर से चेक करेंगे कि हमारे पास आउटपुट आफ्टर इटरेशन 2 क्या है। तो नॉट अबव वाई टू टेबल और नॉट ऑन बी वाई टू। तो फिर से हमें ऐसे फैक्ट ढूंढने पड़ेंगे जिनमें एक तो ऑन है या फिर अबोव है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने फैक्ट लिया है अबोव को अबोव के साथ कैंसिल करना चाहता हूँ, इस तरह का फैक्ट मैंने लिया, दैट इज थर्ड फैक्ट को मैंने फिर से लिया है। एंड नाउ वी हैव टू परफॉर्म द रिजोल्यूशन। जब ये रिजोल्यूशन परफॉर्म करेंगे तो ये पर्टिकुलर अबोव और ये पर्टिकुलर अबोव ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और रिजोल्यूशन जो परफॉर्म होगा वो रिजोल्यूशन परफॉर्म होते वक्त यूनिफिकेशन जो रहेगा दैट यूनिफिकेशन विल बी इन बिटवीन वाई टू एंड x1 एंड y1 एंड टेबल। तो आप ध्यान दीजिए दिस पर्टिकुलर नॉट अबोव विल गेट कैंसल्ड विद दिस अबोव, गेटिंग इट। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर हमने इस ऑन को कैंसिल क्यों नहीं किया। यस डेफिनेटली आप ऑन को कैंसिल कर सकते हो
लेकिन उसके लिए आपको फिर यहाँ नॉट ऑन है तो नॉट ऑन वाला कैंसलेशन वाला फैक्ट फिर यहाँ से लेना पड़ेगा। तो फिर आप फैक्ट नंबर 1 या फैक्ट नंबर 2 ले सकते थे। तो ये वाली स्टेप हम आगे परफॉर्म करने वाले हैं। तो अगर पहले अबोव कैंसिल करेंगे तो ऑन का टर्न नेक्स्ट में आएगा, या फिर अगर पहले ऑन कैंसिल करते तो अबोव का टर्न नेक्स्ट आएगा। गेटिंग इट? तो जैसे कि मैं जो अज्यूम कर रहा हूँ वहां पे मैं अबोव को पहले कैंसिल कर रहा हूँ, एंड दैट्स व्हाई अबोव अबोव विल गेट कैंसल्ड, और आउटपुट जो आएगा दैट आउटपुट विल बी नॉट ऑन बी वाई टू और नॉट ऑन वाई टू टेबल। और अभी जब हम इटरेशन 4 में हम जाएंगे तो इटरेशन 4 जब हम परफॉर्म करेंगे तो इटरेशन 4 में अभी टर्न जो रहेगा दैट विल बी द कैंसलेशन ऑफ ऑन। गेटिंग इट? तो इस तरीके से हमने इटरेशन 3 परफॉर्म किया है, और इटरेशन 3 ऑफ रिजोल्यूशन का आउटपुट जो है दैट इज नॉट ऑन बी वाई टू और नॉट ऑन वाई टू टेबल। एंड नाउ वी हैव टू गो फॉर इटरेशन 4। तो इटरेशन 4 में फिर से चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास अवेलेबल क्या है, नॉट ऑन। तो हमें ऑन वाला फैक्ट चाहिए। तो ऑन वाला फैक्ट कौन सा है? तो आप देख सकते हैं ऑन वाले फैक्ट एक तो फैक्ट नंबर 1 है या फिर फैक्ट नंबर 2 है। तो फैक्ट 1 या फैक्ट 2 ये दोनों में से कोई भी फैक्ट हम ले सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे सेकंड वाला फैक्ट लिया है, तो सेकंड वाला फैक्ट लिया तो यहाँ पे ऑन ये टेबल और ऑन वाई टू टेबल, तो नॉट ऑन वाई टू टेबल विल गेट कैंसल विथ ऑन ये टेबल। गेटिंग इट? इस तरह का यहाँ पे कैंसलेशन होगा। और रिजोल्यूशन जब परफॉर्म करेंगे तो रिजोल्यूशन जो होगा दैट विल बी इन बिटवीन दिस पर्टिकुलर वाई टू एंड ये। तो आउटपुट क्या रहेगा? तो आउटपुट विल बी दिस नॉट ऑन बी वाई टू। तो therefore we have the output not on b y2, but what is y2? Y2 is a, and therefore output after iteration 4 of resolution will be not on ba. And now with this particular input we have to go for next iteration, that will be the iteration 5 of resolution. तो जब कभी भी इटरेशन 5 ऑफ रिजोल्यूशन के लिए जाएंगे तो अवेलेबल चीज क्या है हमारे पास? नॉट ऑन बी ए। तो हमें चेक करना पड़ेगा नॉट ऑन बी ए का रिवर्स। तो नॉट ऑन का निगेशन क्या रहेगा? ऑन। तो ऑन वाला फैक्ट कौन सा है? ऑन वाला फैक्ट हमारा फर्स्ट वाला फैक्ट है, एंड देयरफॉर हियर वी हैव टू गो फॉर फर्स्ट फैक्ट, और फर्स्ट फैक्ट रहेगा ऑन बी ए। और अभी हमें यहाँ पे रिजोल्यूशन परफॉर्म करना पड़ेगा, और रिजोल्यूशन परफॉर्म करते वक्त नॉट ऑन बी ए विल गेट कैंसल्ड ऑन बी ए, एंड फाइनली वी विल गेट द नल सेट। तो आउटपुट आफ्टर इटरेशन 5 ऑफ रिजोल्यूशन वी आर गेटिंग द नल सेट। और जब कभी भी हमारे आउटपुट ऑफ रिजोल्यूशन नल सेट है, इसका मतलब क्या है? वी आर गेटिंग द कॉन्ट्राडिक्शन टू अवर अजम्पशन। तो हमारा अजम्पशन क्या था? हमारा अजम्पशन था नॉट अबोव बी टेबल, and therefore it will becomes false, or not above b table will becomes false। तो ट्रू स्टेटमेंट क्या रहेगा? ट्रू स्टेटमेंट will be above b table। इसका मतलब क्या है? above b table is true, it means that b is on the table, and therefore we can say that hence proved that b is on the table। so this is about how to perform the resolution by using predicate logic. Thank you.